Hello everyone, I am Niladri Paul and today I will be explaining you that how to get permit from the home department which is in Gangtok, Sikkim. So let's begin. So the first question that strike in our mind normally कि why do we need permit to visit such restricted areas and कहाँ से लेनी होती है ये permit. So today I will be explaining everything, so sit back and relax and just watch this video, and I hope so that I clear all your doubts in this video itself, and so that you don't need to ask to the second person that भाई साहब मैं गैंगटॉक जा रहा हूँ, मुझे सिक्किम टूर में जाना है, तो मुझे परमिट कहाँ से लेनी पड़ेगी, मुझे कहाँ पे कौन से डॉक्यूमेंटेशन का प्रिपरेशन करना होगा, क्या करना होगा. धक्के खाने का कोई ज़रूरत नहीं है. आई एम देयर, आई विल बी एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग, एंड सो आई होप सो दिस वीडियो विल हेल्प यू. No, everyone. I hope so this video will help everyone, those who are watching this video. So to visit all these places you need special permit, and जो permit सिर्फ 2 wheelers को ही मिलता है. 4 wheelers are not allowed. So those who are planning to come with their 4 wheelers, it's like waste of time and money to bring your car from all the way from the place that you are trying to come. So the people those who are planning to come by car, please forget about your car. You can come till Gangtok, you can bring your car, you can आप लोग गैंगटॉक में घूम सकते हो अपने गाड़ी लेके. बट जहाँ बात होता है छांगू लेक, नाथुला, जुलुक, गुरदम्बा लेक, लाचुंग, लाचेंग, यूमथांग वैली है, फिर ज़ीरो पॉइंट है, और बहुत सारे जगह है जहाँ पे आप अगर चाहते हो कि आप गाड़ी लेके जाओगे, that is not possible cause Sikkim department they don't allow cars to go in such restricted areas cause basically वो जगह आर्मी के अंडर में है. So army they do not allow any private vehicle to enter. They allow like two wheelers. They allow 2 wheelers to enter, वो भी special permit, and जो कि आपको home department से लेना होगा. So let's begin that what are the documentation required to apply for the permit and what are the procedures. So in this video I will be explaining you everything in a theoretical manner, like I will be telling you what are the procedures, what to do and what not to do and other stuffs. And after I complete this video I will be attaching a video which will be in practical way, where else I will be showing you that after you reach Gangtok, जब आप गैंगटॉक में पहुंचते हो तो आपको कौन सा रूट फॉलो करना होगा till you reach the home department. फिर वहाँ पे जाके आपको क्या प्रोसीजर से फॉर्म्स में क्या क्या फिलअप करना होता है, क्या डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत होता है, एवरीथिंग आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू. इवन आई हैव दिस 1 2 3 4. So I have this 4 envelopes, and even I have this 1 paper documentation which I will be opening in front of you, and I will be explaining you that what are the documentation and what does it mean and where you have to show. So ये होगा theoretical part, and after I complete this video I will be explaining you in a practical way, जहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कि actually उसको recruit कैसे करना है. So after you reach Gangtok, you make sure that you go to the home department and you make sure that yes you reach before 2 p.m. Cause after 2 p.m. they won't be allowing you to give any kind of forms. They don't distribute forms. So you have to reach before 2 p.m. and make sure that it is like safer to reach within 1 p.m. So after you reach over there, you ask for the form. There will be a counter where there will be a lady sitting inside, lady or man, I don't know, they keep on changing. So you ask for the permit form. After you get that form, वहाँ पे आपको अपना नाम कैपिटल लेटर में लिखना होगा. You have to attach a stamp size photograph on the right hand side. आपको अपना नाम लिखना होगा, आपको अपना एड्रेस देना होगा, आप जहाँ से हो, आपको अपना ओरिजिन बताना होगा कि आप इंडियन हो या आप किसी फॉरेन कंट्री से बिलोंग करते हो, आपको वो लिखना होगा. तो है आपको ये भी मेंशन करना होगा कि आप कहाँ कहाँ जाना चाहते हो, कौन सा रूट आप फॉलो करना चाहते हो. And even you have to explain that what else, and yes even you have to explain that for how many days you are planning to go. आप कितने दिन के लिए कहाँ पे जाना चाहते हो. मैक्सिमम वो लोग 1 week के लिए परमिट इशू करते हैं. लाइक इफ़ यू राइट फॉर हाउ मेनी डेज यू आर प्लानिंग टू विजिट, तो अगर आप वहाँ पे 10 days 11 days 15 days लिखोगे तो वो आपको अलाउ नहीं करेंगे. मिनिमम आपको 5 to 7 days के लिए वो आपको अलाउ कर सकते हैं. अगर आप ये चाहते हो कि यार मुझे पूरा सिक्किम एक ही बार में कंप्लीट करना है, मुझे ईस्ट सिक्किम में जाना है, वेस्ट भी कंप्लीट करना है, साउथ एंड नॉर्थ भी कंप्लीट करना है, तो आप अलग अलग डेट्स के हिसाब से आप उनको एक वीक के लिए आप कर सकते. सो नाउ लेट्स कम टू द डॉक्यूमेंटेशन. क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन ज़रूरी होता है एक परमिट पाने के लिए.
सो पहला बात, आपको आपका गाड़ी का जो आरसी है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, उसका आपको ओरिजिनल कॉपी और उसके साथ उस ओरिजिनल कॉपी का 2 जेरोक्स कॉपी आपको देना होगा। आपका पोल्यूशन पेपर वो अप टू डेट रहना होगा और उसका 2 कॉपी जेरोक्स, सबका 2 कॉपी जेरोक्स रखना है अलॉन्ग विद द ओरिजिनल। सो ओरिजिनल में आपको आरसी, पोल्यूशन पेपर, इंश्योरेंस पेपर एंड यस, अगर आपका बाइक आपके नाम पे रजिस्टर्ड नहीं है, सपोज आपका नाम है XYZ एंड आपका बाइक आपके पिताजी के नाम पे है, आपके भैया के नाम पे और आप या फिर आपके दोस्त के नाम पे, और आपने उनका बाइक हायर करके लाया या फिर आपका उनका बाइक यूज़ करके आप वहाँ से लाए हो एंड यू आर प्लानिंग टू गो, देन इन दैट केस यू हैव टू शो योर नोटरी ऑथराइजेशन। सो आपको जो ओनर है, ओनर का एक ऑथराइजेशन आपको उनको दिखाना पड़ेगा, उसका भी जेरोक्स आपको देना पड़ेगा एंड दैट ऑथराइजेशन लेटर शुड बी साइंड बाय द नोटरी ऑफिस। ओके, सो दैट्स अ स्मॉल प्रोसीजर। आप कहीं, आप जहाँ कहीं भी रहते हैं वहाँ पे आपका जो कोर्ट एरिया है उसमें आप जाइए, उनको जाके बताइए कि ये बाइक मेरे पिताजी के नाम पे या फिर ब्ला सो एंड सो के नाम पे है, सो मुझे मेरे नाम पे इसका ऑथराइजेशन चाहिए। तो दे विल बी चार्जिंग अराउंड 100 मे बी $20 और $30, 20-30 रुपया लेंगे एंड आपको वो नोटरी से वो आपको अटेस्टेड स्टैम्प आपको वो लगा के देंगे। सो वो आपको दिखाना होगा एंड अगर बाइक आपके नाम पे रजिस्टर्ड है तो नो इशू, आप जस्ट उसका आरसी, पोल्यूशन पेपर, इंश्योरेंस पेपर एंड आपका ड्राइविंग लाइसेंस, ये चारों का आप 2 कॉपी जेरोक्स और विद ओरिजिनल आप उनको सबमिट कर दीजिए। वो लोग क्रॉस चेक करेंगे, उनके उसके बाद वो आपको वो फॉर्म वो सबमिट हो जाएगा। आपको 1 कॉपी फोटोग्राफ अटैच करना है एंड यस, वन मोर थिंग, इफ़ यू आर गोइंग विथ योर पिलियन, अगर आपके साथ अगर आपके बाइक में कोई पिलियन है तो मेक श्योर कि आप उनके लिए एक उनका आईडी प्रूफ जेरोक्स कॉपी, 1 कॉपी जेरोक्स और उनका 1 फोटोग्राफ उस जेरोक्स कॉपी के साथ अटैच करके आपका जो फॉर्म होगा उनके साथ उनको अटैच करके देना होगा, सो दैट वो पिलियन आपके साथ जो जा रहे हैं उनका वो आईडी प्रूफ के तौर पे वो रहेगा कि आपके साथ जो जा रहे हैं। एंड यस, इन सिक्किम यू हैव टू वेयर 2 हेलमेट्स, सो डू नॉट कम विथ वेयरिंग 1 हेलमेट। सिक्किम में 2 हेलमेट ज़रूरत होते हैं। सो आप कहीं भी जाओ सिक्किम में आपको 2 हेलमेट पहनना होगा। वंस यू हैव कंप्लीटेड ऑल योर डॉक्यूमेंटेशन, फिल अप द फॉर्म एंड अटैच 2 डिफरेंट कॉपीज विद द फॉर्म एंड उसके बाद आपको वो फॉर्म जमा करना होगा बाय 1:30 और बाय 2 PM। उसके बाद यू हैव टू वेट टिल 3:30 मैक्सिमम बाय 4 PM। सो आपको वो जो डॉक्यूमेंट्स, जो परमिट जो आपको वो रिसीव होगा वो आपको 3:30 से 4 बजे के बीच में ही रिसीव होगा। तो आप गैंगटॉक में आप टाइम स्पेंड कर सकते हैं, आप MG बाग में जा सकते हैं, आप हनुमान टॉक में जा सकते हैं, मोनास्ट्री आप मोनास्ट्री में जा सकते हैं। सो इस तरीके से आप अपना टाइम पास कर सकते हैं, ये 1.5 से 2 घंटा जो आपको मिलेगा फॉर द परमिट। एंड वंस इट इज़ लाइक 3:30 और 4, प्लीज़ डू मेक श्योर दैट यू कम बैक बाय 3:30। आप जहाँ कहीं भी हो, आप 3:30 बजे के आसपास आप होम डिपार्टमेंट में बैक होइए, नहीं तो 4 बजे उन लोग का ऑफिस बंद हो जाता है। अगर उससे पहले अगर आपने परमिशन नहीं लिया तो वो परमिट वो उस दिन उन्हीं के ऑफिस में रह जाएगा एंड वो वैलिड नहीं होगा नेक्स्ट दिन के लिए। सो एक बार आपको परमिट मिल जाए, स्टे हैप्पी। आपको जो परमिट मिलेगा वो आप लेके अपने होटल में बैक हो सकते हैं या फिर अगर आपका किसी का अगर घर है गैंगटॉक में, आप उनके घर में जाकर रुक सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट दिन अर्ली मॉर्निंग सुबह आपको अराउंड 7 से 7:30 के बीच में आपको जाना होगा। जो सिक्किम का जो टूरिज़्म डिपार्टमेंट है उधर आपको ये फॉर्म, जो मेन एक फॉर्म होगा वो मैं आपको दिखाऊंगा अभी, वो आपको जमा करना होगा। वो जमा करने के साथ वो एक रिसिप्ट आपको देगा। उस रिसिप्ट को पाते ही आपको जो ऑफिसर आपको वो रिसिप्ट देंगे उनको 20 रुपीज़ पे करना होगा फॉर दैट फॉर्म, फॉर दैट रिसिप्ट एक्चुअली। एंड उसके बाद वो रिसिप्ट का आप 4 कॉपी जेरोक्स करवा लीजिए जैसे कि मैंने करवाया था। एंड वो जेरोक्स कॉपी आपका आने वाला जो भी चेक पोस्ट है उसमें आपका काम आएगा। सो यस, नाउ इट्स टाइम फॉर द प्रैक्टिकल। मैं आपको दिखाऊंगा कि कौन सा रिसिप्ट आपको मिलेगा, कौन सा फॉर्म्स आपको मिलेंगे जिसको देके आपको आने वाला जो परमिट्स है वो आपको मिलेंगे। सो लेट्स बिगिन। सो हियर यू सी इट्स रिटन टू द ADPP चेक पोस्ट 3rd माइल सिक्किम। तो ये फॉर्म के अंदर आपको मिलेगा this. So this will be the paper
जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ सिक्किम होम डिपार्टमेंट। ओके, ये होगा आपका, यहाँ पे आप सर आई एम डायरेक्टर यहाँ पे लिखा हुआ होगा, यहाँ पे आपका व्हीकल नंबर होगा जो कि मेरा व्हीकल नंबर है। अगर आपके साथ अगर कोई पिलियन है तो वो भी यहाँ पे मेंशन किया हुआ रहेगा कि विथ वन मोर राइडर। यहाँ पे कुछ परमिशंस का कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस लिखा हुआ जो आपको पढ़ लेना होगा। उसके बाद आप जहाँ की आप 2 कॉपी ज़ेरॉक्स सबमिट करते हैं, एक कॉपी और 1 सेट ऑफ कॉपी ज़ेरॉक्स आपका होम डिपार्टमेंट के पास रहेगा और एक सेट ऑफ कॉपी इनके पास रहेगा, जो आप इस फॉर्म के साथ सिक्किम टूरिज्म डिपार्टमेंट को आपको देना होगा। सो दिस इज़ द बेसिकली फॉर्म जो आपको सिक्किम टूरिज्म डिपार्टमेंट को देना होगा, जो कि MG मार्ट का एकदम डिसाइड में है। सो लेट मी शो यू व्हाट आर द डॉक्यूमेंटेशन। ये है RC, दिस इज माई RC जेरोक्स। तो आपका जो RC जेरोक्स होगा वो आपको ऐसे मिलेंगे। ये मेरा ड्राइविंग लाइसेंस है, ये मेरा इंश्योरेंस पेपर है, ये मेरा पोल्यूशन पेपर है, एंड ये जो पिलियन जो गया था मेरे साथ ये उनका जेरोक्स कॉपी होगा। सो ये टोटल जेरोक्स कॉपी आपको सिक्किम टूरिज्म डिपार्टमेंट को देना होगा। एंड इसको आप जब देंगे, इसको देने के बाद वो आपको इस तरह का एक, ये इस साइज़ का वो आपको एक रिसिप्ट देंगे जिसका आपको 20 रुपीज़ उनको पे करना है। और इस रिसिप्ट में लिखा हुआ रहेगा कि आप कहाँ तक जा सकते हैं। इट डिपेंड्स वो आपको कहाँ तक देते हैं। अगर रास्ता क्लियर है तो वो आपको नाथुला या जुलूक तक दे देंगे। अगर जब मैं गया था तब मुझे सिर्फ छामू के लिए मिला था और नाथुला के लिए मिला था, मुझे जुलूक के लिए नहीं मिला था, कॉज रोड्स वर लाइक सो क्लोज, बर्फ़ गिरा हुआ था रोड पे, तो मुझे परमिशन नहीं मिला। सो यहाँ पे वो आप डेट देंगे, आप कहाँ तक जा सकते हैं वो आपको देंगे थ्रू मोटर बाइक। आपका नाम, आप अगर अकेले हो तो आपका नाम यहाँ पे होगा। अगर आपके साथ अगर कोई और पिलियन राइडर भी है, अगर और दूसरे अगर कोई पिलियन राइडर हैं, सो उनका नाम यहाँ पे मेंशन किया हुआ रहेगा। कब से लेके कब तक वैलिड है वो भी दिखाना पड़ेगा। सो ये फॉर्म आपको, ओरिजिनल जो फॉर्म है इसका 4 कॉपी ज़ेरॉक्स बनवा के रखना है। ये आने वाला जो चेक पोस्ट है उसमें आपको जमा करना है। सो ये कहाँ पे जमा करना है, ये कहाँ पे जमा करना है और इन सारे डॉक्यूमेंटेशन का क्या करना है, ये सब मैं आपको प्रैक्टिकल में बताऊंगा। इस वीडियो ये जो अभी थियोरेटिकल वीडियो है, इसके ख़त्म होने के बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि वंस यू रीच गैंगटॉक, तो गैंगटॉक में पहुंचने के बाद आपको कौन सा रूट फॉलो करना पड़ेगा जस्ट टू गो टू द होम डिपार्टमेंट। होम डिपार्टमेंट में क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ है वो मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊँगा। एंड उसके बाद वो फॉर्म जब आपको मिलेगा, उसके बाद ये जो मेन फॉर्म है जो आपको टूरिज़्म डिपार्टमेंट में दिखाना है, ये आपको कहाँ पे दिखाना होगा ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। मैं सब आपको दिखाऊँगा आफ्टर दिस वीडियो। एंड इसके साथ आपको एक मिलेगा पर्सनल सेल्फ कॉपी, जो ये आपके काम आएंगे। इसमें इस सेल्फ कॉपी में बस कुछ नहीं, वही सिक्किम होम डिपार्टमेंट की तरफ से ये बताया हुआ रहेगा कि इनको अथॉरिटी है, रजिस्ट्रेशन नंबर दिया हुआ रहेगा, आपका नाम दिया हुआ रहेगा, और ये आपका सेल्फ कॉपी होगा अटैच्ड बाय सिक्किम डिपार्टमेंट। ये आपका एक सेल्फ कॉपी होगा जो आपके लिए काम आएगा। अगर इन केस आपको कहीं पे भी चेकिंग के लिए रोका जाता है कि आप अपना पेपर वर्क दिखाइए, तो उस समय आपके पास अगर पेपर वर्क नहीं है, अगर आपने सारा पेपर्स सबमिट कर दिया और बीच में आपको किसी ने अगर रोक के पूछ लिया कि आप विदाउट पेपर कैसे ट्रैवल करें, तो उस समय आपको ये सेल्फ कॉपी दिखाना पड़ेगा। दिस इज़ फॉर योर ओन सेल्फ। इसको कहीं पे देने का कोई ज़रूरत नहीं है, ये आप अपने पास ही रख सकते हैं। ये आपको है टू द JCO हेडक्वार्टर 7 बटालियन समथिंग। ये आपको जब आप नाथुला के लिए जाएंगे तो बिफोर यू हिट नाथुला, वंस यू क्रॉस छांगू लेक, देन यू विल बी गोइंग टूवर्ड्स नाथुला। सो अगर जब आप नाथुला पहुंचने वाले होंगे तो आपको वहाँ पे गेट दिखाई देगा रेड कलर का, जिसके लेफ्ट साइड में आपको एक बटालियन दिखाई देगा, छोटा सा हरे रंग का एक घर होगा, जो आप यू कैन वॉच दैट टाइनी लाइक ऑफिस काइंड ऑफ एरिया इन वन ऑफ माई वीडियो सिलीगुड़ी टू नाथुला, जो मेरा वीडियो है यूट्यूब चैनल में, वो आप देख सकते हैं, उसमें आपको दिख जाएगा। वहाँ पे आपको ये जो पेपर है जिसमें लिखा हुआ है टू दी JSO हेडक्वार्टर 17 बटालियन माउंट समथिंग, उसमें आपको ये दिखाना होगा। वो लोग इसको देख के वहाँ से आपको एक टोकन देंगे
जो टोकन आपको नाथुला जाने से पहले एक चेक पोस्ट आएगा, उसमें आपको वो छोटा सा जो टोकन है वो आपको देना होगा। जब आप ये बटालियन को जब आप ये वाला फॉर्म देंगे तो वो ये फॉर्म वहाँ पे रख लेंगे। उसके बाद वो आपको एक टोकन देंगे, एक पेपर में लिखा हुआ रहेगा आपका बाइक का नाम, आपका नाम, और वो आपसे आईडी मांगेंगे। सो यू हैव टू शो योर आईडी कि आप जो जिसका पेपर लाए हो आप वही हो या नहीं। सो क्रॉस चेक करने के लिए आपका आईडी मांगा जाएगा। वंस यू शो योर आईडी, आईडी देने के बाद वो आपको 2 टोकन देंगे। सो दो जो टोकन्स आपको मिलेंगे वो आपको नाथुला जाने से पहले एक गेट आएगा, दायां तरफ जुलुक के लिए रास्ता जाएगा, बायां तरफ नाथुला के लिए रास्ता जाएगा। तो उसी जुलुक और नाथुला का 2 डिवाइडिंग पोर्शन, जो डिवाइडिंग वी पॉइंट है, उसी के बीच में एक चेक पोस्ट होगा आर्मी का, जहाँ पे आपको ये टोकन देना होगा। वो टोकन आप वंस जब आप उनको ये टोकन देंगे उसके बाद आप नाथुला के लिए जा सकते हैं। एंड अगर आप ये प्लान कर रहे हैं कि मैं जुलुक भी जाऊँ, तो आप नाथुला से जब आप नीचे उतरेंगे तो उस समय आपको लेफ़्ट लेना होगा। जो वी शेप रोड है, लेफ़्ट में जो राइट को, मतलब आप जब उतरेंगे तो आप लेफ़्ट की तरफ होंगे, वो लेफ़्ट वाला रूट आपको लेना होगा। एंड वंस यू टेक दैट रूट, अराउंड 7 to 8 किलोमीटर्स ट्रैवल करने के बाद आपको एक बाबा मंदिर मिलेगा, जो कि हरभजन बाबा मंदिर है, जो कि बहुत ही फेमस है, बहुत ही जागरूक मंदिर है। उसके बारे में आप गूगल में प्लीज़ सर्च कर लीजिएगा, हरभजन बाबा मंदिर इन सिक्किम। एंड इट्स अ वेरी गुड प्लेस। आप एक बार कभी भी जाएं तो प्लीज़ उसको श्योर विजिट करें। एंड वंस यू क्रॉस एट हरभजन बाबा मंदिर, क्रॉस करने के थोड़ा देर, लाइक अराउंड आफ्टर विदिन 500 मीटर्स, आपको जुलुक से पहले एक चेक पोस्ट आएगा। वहाँ पे आपको ये जो टोकन उन लोगों ने जो दिया हुआ है, ये जो टोकन था, जो ओरिजिनल टोकन आपको 20 रुपीज़ देने के बाद मिला, वो टोकन का ज़ेरॉक्स अटेस्टेड जो होगा वो आपको वहाँ पे देना होगा। एंड वंस यू गिव दैट टोकन, वंस यू गिव दैट टोकन टू देम, दे विल बी साइनिंग इट ऑफ, एंड वो लोग उसमें स्टैम्प मार देंगे। उसके बाद वो जो कॉपी है वो आपको अपने पास रखना है। एंड आप जुलूक देख के जब आप एक जगह आएगा रोंगली, सो वंस यू रीच रोंगली, आप रोंगली में पहुंचने के बाद आपको कोई भी पुलिस स्टेशन में आप जाके, या फिर कोई भी अगर साइड में अगर कोई भी ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर अगर खड़े हैं, तो उनको ये वाला देना है जिसमें लिखा हुआ है टू दी ओसी रोंगली। ठीक है, रोंगली वो जगह का नाम है जहाँ पे आपको पुलिस ऑफिसर को ये जो एनवलप है वो उनको देना है, और उनको देना है, और वो ये खोल के एक बार चेक करेंगे कि हाँ ये आप ही का परमिट है जो आप उनको दे रहे हैं। वंस यू गिव इट टू हिम, वो आपको अलाउ करेंगे कि हाँ आप जा सकते हैं। एंड वंस यू गिव दिस पेपर वर्क टू दैट पुलिस ऑफिसर, यू आर डन विद ऑल योर पेपर वर्क्स। उसके बाद आपको किसी भी तरह का कोई पेपर वर्क किसी को दिखाने का ज़रूरत नहीं है। आप वहाँ से रोंगली से निकलिए, वो रंगपुर से निकलेगा। उसके बाद यू कैन गो बैक टू द गैंगटॉक, और एल्स यू कैन गेट बैक टू सिलीगुड़ी, जो कि मेन हब पॉइंट है। सो आप वहाँ पे जा सकते हैं। एक बार आपको ये चारों जो एनवलप्स है, ये चारों एनवलप्स आपको जब मिल जाए, तो आप जब ये इसका रिसिप्ट पा जाए फ्रॉम द टूरिज़्म डिपार्टमेंट, आपको ये 3rd माइल में ये जो रिसिप्ट है नाथुला जाने का जो रोड है, उससे पहले आपको एक आउट चेक पोस्ट मिलेगा। ठीक है, तो उस चेक पोस्ट में पुलिस ऑफिसर को जाके आपको ये पेपर देना है, इसका ओरिजिनल देना है। वो लोग उसमें साइन करेंगे, उसमें स्टैम्प मार के देंगे। एंड अगर आप वाया गैंगटॉक अगर आप आना चाहते हैं, अगर आपको सिर्फ छांगू और नाथुला तक जाना है, उसके बाद अगर आपको आना है वापस, तो उसके लिए आपको ये परमिट जो है बिफोर 4 PM आपको ये जमा करना होगा उसी आउटपोस्ट में जिसमें आपने साइन करवाया था। एंड उस वहाँ पे जमा करने के बाद फिर आप वहाँ से गैंगटॉक वापस आ सकते हैं। सो नाउ द क्वेश्चन इज़, क्या ये सिर्फ ज़रूरी है सिर्फ छांगू और नाथुला के लिए? नहीं। अगर आप गुरुदम्बार लेक जाना चाहते हैं, अगर आप लाचुंग, लाचेंग, युमथांग वैली, 0 पॉइंट, आप किसी भी पार्ट ऑफ द सिक्किम जाना चाहते हैं विथ योर 2-व्हीलर व्हीकल, तो आपको ये पेपर्स बहुत ही ज़रूरी है। आप जहाँ जाना चाहते हो, आप फॉर्म में उस जगह का नाम आप फिलअप कीजिएगा, आपको उस जगह के लिए परमिट मिलेगा। अगर आप छांगू नाथुला जुलूक देखना चाहते हैं, तो आपको छांगू नाथुला जुलूक फॉर्म फिलअप कीजिए, आपको छांगू नाथुला जुलूक के लिए ही मिलेगा। अगर आप जाना चाहते हैं गुरुदम्बार लेक, युमथांग वैली, 0 पॉइंट, तो आप गुरुदम्बार लेक, युमथांग वैली, 0 पॉइंट, लाचुंग, लाचेंग मेंशन करके लिख दीजिए, आपको वहाँ का मिल जाएगा। अगर आप पेलिंग जाना चाहते हैं, अगर आप कांचनजंगा वाटरफॉल, यूंगसम, ये सब जगह पे जाना चाहते हैं, तो आपको वहाँ का नाम मेंशन करना पड़ेगा, तब भी जाके आपको वहाँ के लिए परमिट मिलेगा। गैंगटॉक पहुँचने से पहले आपको ये बटरफ्लाई शेप का एक फ्लाईओवर मिलेगा।
जिसको स्ट्रेट कंटिन्यू रखना है और उसी रोड को स्ट्रेट रखते हुए आपको ऊपर की तरफ ये रोपवे दिखाई देंगे और इसी रोड को कंटिन्यू रखना है जब तक आप इस जगह पर की तरफ आप पहुंच जाते हैं। उसके बाद आपको कंटिन्यू स्ट्रेट रखना है। ये जो दायां तरफ आप जो ऑफिस देख रहे हैं यही है टूरिज़्म डिपार्टमेंट का ऑफिस, जहाँ पे आपको सुबह ये पास जमा करवाना है। दिस इज़ द टूरिज़्म ऑफिस, ये जो बोर्ड लिखा हुआ है एंड ये बिल्कुल एमजी मार्ग के लेफ़्ट हैंड साइड में है। सो आपको ये चौराहे से आपको स्ट्रेट जाना है और आपको ये कंटिन्यू रखना है तब तक जब तक आप और एक अगला मोड़ पे नहीं पहुंच जाते। ये सुनिश्चित करें कि आप इस जो सीमा रेखा है इसके बीचों बीच से जाए, कॉज वहाँ पे एरो बनाया हुआ है कि आपको किस तरफ जाना है। आपको बायां तरफ लेना पड़ेगा जो कि होम डिपार्टमेंट की तरफ जाता है ये रास्ता, और यहाँ से नीचे उतरने के बाद आपको ये ऊपर की तरफ जो रास्ता दिखाई दे रहा है आपको उसमें चढ़ाई करना होगा। जब आप पहुंच जाते हैं चढ़ाई करके तो उसके बाद आपको ये गेट दिखाई देगा जिसके थ्रू आपको एंटर करना है और बायां तरफ रखा हुआ पार्किंग एरिया में आपको अपना बाइक पार्क करना है। उसके बाद आपको इस काउंटर पे आपको जाना है और जाके बैठे हुए सर या मैडम से फॉर्म का दरख्वास्त करना होगा। जब वो आपको फॉर्म दे दे तो आप वो फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा। और यहाँ पे एज ए नोटिस लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट्स फॉर राइडिंग बाइक्स आर शैल नॉट टू बी एक्सेप्टेड आफ्टर 2 PM। जब आपको आपका ये फॉर्म मिले तो उसमें सबसे पहले आप अपना फ़ोटो ऊपर लगा दीजिए। उसके बाद आप अपना नाम लिखिए कैपिटल लेटर में, आपका ऑक्यूपेशन क्या है वो आप लिखिए, आपका परमानेंट एड्रेस क्या है रेजिडेंशियल एड्रेस वो आपको लिखना होगा। आप प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के तौर पे आप क्या देना चाहते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, आधार कार्ड या जो भी आपको आपके पास है वो प्रूफ ऑफ आईडी आप वहाँ पे लिखिए। आप कौन से जगह पे आप जाना चाह रहे हैं, कौन से जगह पे आपको ट्रिप के लिए जाना है, चाहे वो छांगू लेक हो, नाथुला हो, कहीं भी हो वो आपको लिखना होगा। कौन सा रूट आप फॉलो करना चाह रहे हैं वो आपको लिखना होगा। ड्यूरेशन ऑफ विजिट, आप कितना दिन के लिए आप ये ट्रिप कर रहे हैं वो आपको लिखना होगा। डेट ऑफ विजिट मतलब आप कौन से दिन में वहाँ पे आप जाना चाह रहे हैं। अगर आज का डेट में जाना चाह रहे हैं तो आपको ये परमिशन कल के लिए मिलेगा, तो आप एक दिन बाद का डेट लिखिएगा। उसमें आपका फिर व्हीकल का डिटेलिंग देना पड़ेगा, आपका बाइक का रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना पड़ेगा, आपका मॉडल क्या है बाइक का, आपका बाइक का कंपनी क्या है वो लिखना पड़ेगा। फिर इसमें आपको ये डॉक्यूमेंटेशन में टिक करना पड़ेगा कि आप कौन सा डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे हैं, वोटर आईडी कार्ड सबमिट कर रहे हैं या ड्राइविंग लाइसेंस या पोल्यूशन पेपर, आरसी, या कौन से अलग अलग कौन कौन से आप वो सबमिट कर रहे हैं वो आपको देना पड़ेगा। उसके बाद नीचे आपको ये मेंशन करना पड़ेगा कि आप कहाँ पे ये फॉर्म फिलअप करें, तो वहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा गैंगटॉक सिक्किम। आपका नीचे आपका कॉन्टैक्ट नंबर देना पड़ेगा, राइट साइड में आपको अपना साइन करना पड़ेगा। और इसके बाद आप जब आपका ये सारा डॉक्यूमेंटेशन हो जाए उसके बाद आप ये फॉर्म को अलग अलग डॉक्यूमेंट के साथ आप उसको अटेस्टेड कर दीजिए। जैसे कि यहाँ पे मैंने अपना दोनों आरसी का ज़ेरॉक्स को मैंने दो अलग अलग रखा है, दोनों इंश्योरेंस पेपर दो अलग अलग जगह पे रखा है। सो सब डॉक्यूमेंट्स जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं इन सब का, इसके बाद आपके पास जितने भी डॉक्यूमेंट्स है, आरसी, पोल्यूशन पेपर, इंश्योरेंस पेपर, ड्राइविंग लाइसेंस और आपका आईडी का जेरोक्स, ये सारे डॉक्यूमेंट्स का आपको दो दो कॉपी ज़ेरॉक्स अलग अलग करके रखना पड़ेगा। अगर आपके साथ कोई पिलियन है तो उस पिलियन का एक वोटर आईडी कार्ड या फिर आधार कार्ड, जिस किसी का भी आप डॉक्यूमेंट सबमिट कर रहे हैं उसका एक ज़ेरॉक्स कॉपी, उसके साथ उनका एक फ़ोटो आप उसमें स्टेपल करके आप इन चारों को एक साथ इकट्ठे करके आप जो वहाँ पे जो बैठे हुए रहते हैं सर या मैम आप उनको दे दीजिए। उसके बाद वो प्रोसीजर को शुरू करेंगे, उसके बाद आपको आपका परमिट मिल जाएगा। टूरिज़्म डिपार्टमेंट में जाने के लिए आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है सिक्किम टूरिज़्म डिपार्टमेंट। यहाँ पे आपको आपका बाइक पार्क करनी होगी और पार्क करके आपको अंदर की तरफ जाना पड़ेगा।
ये वो काउंटर है जहाँ पे आपको आपका होम डिपार्टमेंट से मिला हुआ परमिट जो है वो आपको यहाँ पे जमा करना होगा। उसके बाद जो ऑफिसर बैठे हुए रहेंगे वो आपका वो परमिट का डॉक्यूमेंट निकाल के वो वेरीफाई करेंगे। आपका आईडी अगर मांगते हैं तो आपको दिखाना होगा। जब वो टैली कर लेंगे कि आपका आईडी और आपका डॉक्यूमेंट में मैच है तो वो उसके बाद आपको ये परमिट इशू करेंगे। उसके बाद वो परमिट इशू करने के बाद आपको उनको 20 रुपीज़ देना है। और उसके बाद इस परमिट का ध्यान रखें कि आप इस परमिट का 4 कॉपी ज़ेरॉक्स करवा लें, कॉज ये आगे आने वाले रास्ते पे आपको काम आएंगे। If you really like this video, then do not forget to smash that like button. If you have really disliked this video, then do not hesitate to smash that dislike button. If you want to watch my videos in future, then do not forget to subscribe. And after you subscribe, do not forget to press that bell icon so that you get notification next time whenever I upload any new video. And yes, if you have any kind of views, your own opinions, your suggestions, then you do not forget to comment down on the comment section below. So yes, आज के लिए इतना ही. So I will come back with a new vlog in the next time. And yes, till then, please ride safe, be safe, do whatever you want to do in your life. Stay happy. Goodbye.